हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 8th की जो आपकी सोशल साइंस की बुक है उसका चैप्टर नंबर 1, नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर यूज़। सो कंसर्न सोशल साइंटिस्ट आर क्लियर ऑन व्हाट वी नीड टू डू कि हमें क्या करना है। वी मस्ट मूव टुवर्ड्स अ रीजेनरेटिव इकोनॉमी, एन इकोनॉमी that operates in harmony with nature, repurposing used resources, minimizing waste, and replenishing depleted resources. We must return to the innate wisdom of nature itself. तो यहाँ पे एक तरह से नेचर के साथ ही बात हो रही है कि हमें जो है किस तरह से चीज़ों को रिसाइकिल करना है या फिर नेचर के अकॉर्डिंग हमें काम करना है, नेचर को ख़राब करके नहीं, या फिर जिस तरह से आजकल पोल्यूशन ज़्यादा हो रहा है तो वो चीज़ें नहीं करनी है, हारमोनी में उनके साथ काम करना है। सो चैप्टर शुरू होने से पहले कि क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, और ये जो है दूध सागर है, वाटरफॉल है, रेलवे स्टेशन, रेलवे ब्रिज है जो कि गोवा इंडिया में बना हुआ है। तो हमें नेचर के साथ साथ काम करना है, उससे खराब करके नहीं। सबसे पहले चैप्टर शुरू होने से पहले जो आपके कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो इस चैप्टर के अकॉर्डिंग हमें पता चलेंगे। हाउ डू वी कैटेगराइज नेचुरल रिसोर्सेज? Natural resources are element found in environment that human use for various purposes. They can be categorized based on their use and renewability. By use, essential resources, air, water, soil are crucial for life. Material resources, wood, coal, metal are used to create product. Energy resources, solar, wind and fossil fuels generate electricity and power industries. बाय रीन्यूएबिलिटी, तो ऐसे भी हम कर सकते हैं, रीन्यूएबल रिसोर्सेज, टिम्बर, वाटर एंड सोलर एनर्जी कैन रीजनरेट ओवर टाइम. नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज, कोल, पेट्रोलियम एंड मिनरल आर लिमिटेड एंड टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म, मेकिंग दैम डिफिकल्ट टू रिप्लेस वंस यूज्ड. What is the connection between the distribution of natural resources and different aspects of life? So, the distribution of natural resources significantly influences various aspects of life. Human settlements. Area rich in resources attract industries, leading to economic growth and job creation. Trade. Resource availability shapes trade patterns, facilitating local and international commerce. International relations. Unequal resource distribution can cause conflict over access, particularly for vital resources like water and mineral. Infrastructure development. Resource rich region often see better infrastructure, enhancing the quality of life. Disparities. Some area benefit more than their resources, leading to inequality in living standard. Overall, while resources can drive growth, their unequal distribution can also lead to significant challenges. What are the implications of unsustainable use over exploitation of natural resources? Unsustainable use or over exploitation of natural resources can lead to serious long-term issues. Resource depletion. Overuse can exhaust रिसोर्स, लिविंग फ्यूअर ऑप्शन फॉर फ्यूचर जनरेशन. तो ओवर यूज़ नहीं करना है. अगर कोई भी चीज़ आप ओवर यूज़ करते हैं तो वो आगे के लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी. इकोसिस्टम डैमेज होगा, इकोसिस्टम सफ़र विच अफेक्ट बायोडाइवर्सिटी एंड नेचुरल हैबिटेट्स. शॉर्टेज हो जाएंगे, कम हो जाएंगे. एक्सेसिव यूज़ ऑफ रीन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक वाटर एंड सॉइल कैन हिंडर देयर नेचुरल रीजनरेशन. कम्युनिटी इम्पैक्ट होगा. Local community that rely on these resources for their livelihood may face economic challenges. Wider issues. Over exploitation contributes to climate change हो सकता है, pollution बढ़ेगा, potential conflict होंगे अगर remaining sources कम हो जाएंगे, आप उनको ज़्यादा यूज़ कर रहे तो. Addressing these implications is crucial for ensuring sustainable future. Now, a micro-hydel plant in Himachal Pradesh, the power of flowing water converted into electricity. यहाँ पर पानी की जो वेव्स आती है, पावर आती है, ठीक है, जो मतलब जिस स्पीड से वो आ रहा है उससे जो है इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है. An offshore oil rig extract platform from below the seabed. Now, when does nature become a resource? So, कब वो एक रिसोर्स बन गया? One of the meaning of the word nature is the totality of life and non-life form that are part of our environment.
बट हैव नॉट बीन क्रिएटेड बाय ह्यूमंस। सो नेचर क्या है, जो लाइफ वाली फॉर्म्स है या नॉन लाइफ जो भी चीज़ें यहाँ पर आपको दिखती हैं वर्ल्ड में, वो सब क्या है, एक इन्वायरमेंट का पार्ट है और ये ह्यूमंस ने क्रिएट नहीं किया है। व्हेन ह्यूमंस यूज दीज ऑफ their substance or create new things from them for consumption, these element of nature become resources। अब जो चीज़ें हमें यहाँ से मिल रही हैं उनका यूज़ करके हम कुछ नया बना रहे हैं, उनको कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए क्या बन जाते हैं, रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल ट्रीज आर पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट, दे एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ ह्यूमंस, तो उन्हें ह्यूमंस की ज़रूरत नहीं है और इन्वायरमेंट का पार्ट है। व्हेन वी कट देम, लेकिन हम क्या करते हैं, उन्हें कट करते हैं और कन्वर्ट करते हैं उन्हें वुड में ताकि हम फर्नीचर बना सकें। वी सी द ट्रीज एज रिसोर्सेज, तो ट्री हमें एक एज अ रिसोर्स दिखाई देते हैं। Often these entities are not easily accessible. For example, there may be petroleum in place deep under the ocean that we do not have the technology or to access, or the extraction cost may be too high. अब कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो हमारे पास, जैसे ट्रीज को हम इजीली काट लेते हैं क्योंकि सामने दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जैसे पेट्रोलियम वगैरह जो ओशन में बहुत नीचे जो हैं पाया जाता है या मिलता है, तो उन चीज़ों के लिए हम एक्सेसिबल नहीं है, वहाँ तक हम नहीं पहुँच पा रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है और मे बी उसका कॉस्ट बहुत हाई है, तो इसलिए हम वो नहीं कर पा रहे हैं। और इट मे बी कल्चरली एक्सेप्टेबल लाइक कटिंग ट्रीज इन सैक्रेड ग्रूव्स, जो पवित्र जगह मानी जाती है वहाँ पर ट्री काटना जो है एक्सेप्ट नहीं किया जाता है लोगों द्वारा। सो फॉर एन एंटाइटी टू बी कोल्ड रिसोर्सेज, तो इनको हम रिसोर्सेज बोलते हैं। इट शुड बी टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, तो रिसोर्सेज कौन से हैं, जो टेक्नोलॉजिकली जो है एक्सेसिबल हो, हम इजीली उनके पास पहुंच पाए। एंड इट्स एक्सपोलिएशन शुड बी इकोनॉमिकली फेसिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल, मतलब लोग भी, जो वहाँ के लोग हैं वो भी उसको एक्सेप्ट करें। जैसे कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर अंदर जाना तक मना है, लोग मानते हैं कि वो हमारे भगवान है या फिर उनकी पूजा करते हैं, नेचर की पूजा करते हैं बहुत सारे लोग, तो वहाँ पर पेड़ नहीं काटे जाते। तो रिसोर्स में हम किनको लेंगे, जिन पे हम ईजिली जो है एक्सेस कर पाते हैं, इकोनॉमी के लिए ठीक हो, ज़्यादा हाई ना हो और साथ में लोग भी उस चीज़ को एक्सेप्ट करें। यूजुअली द वर्ड एक्सपोलिएशन हैज़ अ नेगेटिव कॉनोटेशन, इन द कॉन्टेक्स्ट वी यूज़ इट हेयर, तो यहाँ पर जो हम यूज़ करेंगे, कई बार इसको नेगेटिव में भी लिया जाता है। यहाँ पर जो है एक्सपोलिएशन का मतलब है एक्सट्रैक्शन, निकालना, यूटिलाइजेशन एंड कंजम्पशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। द अर्थ हैज़ ट्रेजर्स मैनी ऑफ विच हैव फॉर्म्ड ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स, जिसमें जो बहुत सालों से कुछ बने हैं, एंड विच ह्यूमन हैव टेकन, और कुछ ह्यूमन ने ले लिया, लर्न टू यूज़, और उनको कैसे यूज़ करना वो सीखा। दीज इंक्लूड द मोस्ट ओबियस वन लाइक वाटर, एयर एंड सोइल, एंड ऑल्सो द नॉट सो ओबियस वन लाइक कोल, पेट्रोलियम, प्रीशियस स्टोन्स, मेटल ओर्स, टिम्बर एक्सेट्रा। तो ह्यूमन ने इन सारी चीज़ों के बारे में पता किया, उन्हें जो अपने पास लिया वहाँ से ले लिए नेचर से, उनका यूज़ करना सीखा कि कैसे उनको यूज़ करना है। यहाँ पर है हनी लेते हैं बी हाइव से और जेंटल प्लगिंग करते हैं, मिनिमल डिस्टर्बेंस टू द अंडरग्राउंड इकोसिस्टम एंड रिटेन सोयल मॉइस्चर। नाउ इन मैनी इंडिजीनियस ट्रेडिशन ऑफ द वर्ल्ड नेचर इज कंसिडर्ड सैक्रेड, तो नेचर को पवित्र माना जाता था। यू हैव रीड अबाउट दिस इन सच ट्रेडिशन, नेचर इज अ न्यूट्रल और न्यूशयर। डू यू नो of practices that reflect this? So yes, many traditional practices show respect for nature as sacred. In India, sacred groves are protected forest areas where cutting trees or harming wildlife is not allowed, as they are believed to be home to gods or spirit. River like the Ganga are worshipped and seen as holy. पवित्र माना जाता है, उन्हें पूजा की जाती है उनकी। Certain trees such as the peepal and banyan are also considered sacred and are not cut down. Indigenous group in other countries like Native Americans and Aboriginal Australians hold similar beliefs and perform rituals to honor nature. तो उनके भी कुछ इसी तरह के बिलीफ हैं और वो भी नेचर की जो है केयर करते हैं या फिर उनकी जो है पूजा वगैरह करते हैं। These practices reflect care for the environment and a deep respect for natural resources. Now you have to take a pause, look at yourself and the things around you. What is the origin of each of them? At some point, they all lead to nature, even the plastic button on your shirt. Everything around us, from our clothes to the technology we use, originates in nature. Even a plastic button on your shirt comes from fossil fuels
like petroleum and natural gas. Fabrics such as cotton and wool are derived from plants and animals, while building are constructed from timber, stones, and metal mined from the earth. The energy we rely on, whether it be coal, wind, or sunlight, also come from nature. In summary, all material and product come connect back to nature. Nature से ही मिले हैं. And natural resources are vital for our survival and well-being. We must use these resources wisely and sustainably for future generation. In short, we apply the term natural resources to material and substances that occurs in nature and are valuable to humans. तो नेचुरल रिसोर्सेज हमें किन्हें बोलते हैं? वो मटेरियल या सब्सटेंस जो हमें नेचर से मिलते हैं और ह्यूमन के लिए बहुत वैल्यूएबल हैं. कैटेगरीज अब है नेचुरल रिसोर्सेज की अलग अलग. इन साइंस वी लर्न द यूजफुलनेस ऑफ कैटेगराइजेशन एंड नेमिंग. वी यूज सम शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक और क्राइटेरिया है इनका जिनके अकॉर्डिंग हमें कैटेगराइज इनको किया गया है. एंड व्हेन वी कैटेगराइज आइडियाज़ और थिंग, तो जब हम इनको आइडियाज़ और थिंग को कैटेगराइज करते हैं, वी नेम द कैटेगरीज. हम जो कैटेगरीज को याद करते हैं उनको नाम देते हैं सो डैट वी कैन रेफर टू देम विद जस्ट वन वर्ड और अ शॉर्ट फ्रेज. तो हर एक कैटेगरी को एक नाम दिया जाता है ताकि हम ईजिली एक वर्ड से या शॉर्ट फ्रेज से उनको बता सके कि किसके बारे में बात हो रही है. When these names and meaning are shared across group of people, अब जब ये नेम या मीनिंग जो है पूरे ग्रुप के साथ शेयर किए जाते हैं, it help us discuss a set of ideas or things without needing to describe them every time. So इससे जो है हम एक आइडिया को डिस्कस कर सकते हैं और इसके लिए बार बार हमें उस चीज़ को जो है डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं होगी कि किसके बारे में बात हो रही है. वी कैन कम्युनिकेट मोर इफेक्टिवली टू, और अच्छे से बात कर सकते हैं. इन अर्लियर क्लासेज यू लर्न अबाउट लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. तो पहले की क्लासेज में आपने लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में देखा. एज सुन एज वी यूज़ दीज वर्ड्स, जैसे ही हम बोलते हैं लिविंग थिंग्स तो पता चलता है किसके बारे में बात कर रहे हैं. नॉन लिविंग थिंग्स तो पता चलता है किसके बारे में बात कर रहे हैं. तो जब हम इन वर्ड्स का यूज़ करते हैं, यू नो वट दे मीन, तो तुम्हें पता है किसके बारे में बात हो रही है. दिस इज़ द सिंपल एग्जाम्पल ऑफ कैटेगरीज. तो हमने इनको कैटेगराइज कर दिया. तो एक सिंपल एग्जाम्पल है कि किस तरह से हम चीज़ों को कैटेगराइज करते हैं. वी डू द सेम विद नेचुरल रिसोर्सेज. अब नेचुरल रिसोर्सेज के साथ भी हम सेम करेंगे. वट माइट बी द डिफरेंट क्राइटेरिया वी कैन यूज टू कैटेगराइज नेचुरल रिसोर्सेज. तो नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे जो है हम कैटेगराइज कर सकते हैं, क्या डिफरेंट क्राइटेरिया होगा. सो नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी कैटेगराइज इन मैनी वेज. They may come from living things called biotic resources like plants and animals, or for non-living things including water, air and minerals. One key way to divide them into renewable types, this like sunlight and wind, and non-renewable like ones like coal and oil. तो इस तरह से भी कर सकते हैं. They can also be classified by where they are found, कि कहाँ मिलते हैं. For example, coal and oil exist only in certain places, while sunlight and wind are available almost everywhere. Another way to categorize them is to by how easy they are to access. Surface minerals are easy to get, while oil deep under the ocean requires special technology. Finally, some hold cultural or religious importance, such as sacred river or forest. Now ये हो गया बायोटिक, एबiotic, renewable, non-renewable, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, एसेसिबिलिटी एंड कल्चरल सिग्निफिकेशन. तो इस तरह से आप इनको चेंज कर सकते हैं. सो वन ऑफ द वे वी शुड कैटेगराइज नेचुरल रिसोर्सेज इज बेस्ड ऑन द यूज वी पुट देम ऑन. ठीक है, एक तो हम कर सकते हैं कि किस तरह से हम यूज़ करते हैं उनको, जैसे कि जो हमारे लिए एसेंशियल है, सोर्स फॉर मटेरियल है या सोर्स फॉर एनर्जी है, इसके अकॉर्डिंग भी हम उन्हें कैटेगराइज कर सकते हैं. रिसोर्सेज असेंशियल फॉर लाइफ. लाइफ कुड नॉट एग्जिस्ट ऑन अर्थ विदाउट द एयर वी ब्रीथ एंड द वाटर वी ड्रिंक एंड द फूड वी ईट. तो इसके बिना तो लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं करती. वी टेक दीज फ्रॉम द एटमोसफेयर, और ये सब हमें कहाँ मिलता है? एटमोसफेयर से मिलता है. द रिवर्स एंड पॉन्ड्स एंड थ्रू द कल्टिवेशन ऑफ सोइल और अदर लिविंग थिंग्स. तो खाना वगैरह हमें यहाँ सबसे कल्टिवेशन से, मिट्टी से कल्टिवेशन ऑफ सोइल जो करते हैं उस टाइम पे, और बाकी लिविंग थिंग से हमें खाना मिलता है. पानी हमें रिवर से मिल जाता है, पॉन्ड से मिल जाता है, और एटमोसफेयर से हमें एयर मिल जाती है. वी कैन नॉट मेक द एयर वी ब्रीथ, हम एयर नहीं बना सकते. द वाटर वी ड्रिंक, वो हम नहीं बना सकते. और जो मिट्टी से हम खाना बना रहे हैं, खाना जो है उगा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो हम नहीं बना सकते. मतलब वो मिट्टी, वाटर और एयर हम नहीं बना सकते हैं. रिसोर्सेज फॉर मटेरियल. ह्यूमन बीइंग
create physical objects out of nature's gift. तो physical objects भी उन्होंने कुछ बनाए हैं. We make them for our utility or to create things of beauty that enrich our lives and those of others. तो कुछ ऐसी चीज़ें हम बनाते हैं जो कि क्रिएट थिंग्स ऑफ ब्यूटी, मतलब अच्छी लगे यूज़ करने के लिए या हमारी लाइफ को थोड़ा और ईजी करने के लिए हम चीज़ें बनाते हैं दूसरों के लिए. अ पीस ऑफ वुड, जैसे कि एक लकड़ी का टुकड़ा है, कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ चेयर, चेयर में चेंज कर सकते हैं. उससे एक सैटेलाइट भी बना सकते हैं. इंडियाज जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी प्रोवाइड अस विद अ वाइड वैरायटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज फ्रॉम वुड टू मार्बल एंड कोल टू गोल्ड. और इंडिया का जो ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी है उसमें आपको बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज मिलते हैं, वुड से लेकर मार्बल और कोल से लेकर गोल्ड तक. एनर्जी के रिसोर्सेज क्या क्या हैं? एनर्जी इज़ अ कॉर्नरस्टोन ऑफ मॉडर्न लिविंग, तो बहुत ज़रूरी है ये. इलेक्ट्रिसिटी फॉर आवर बिल्डिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड ऑल टाइप ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, हर एक चीज़ में इलेक्ट्रिसिटी चाहिए. दिस एनर्जी कैन कम फ्रॉम डाइवर्स नेचुरल सोर्सेज, तो अलग अलग नेचुरल सोर्सेज से ये हमें मिलती है, जैसे कि कोल, वाटर, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, सनलाइट, विंड एक्सेट्रा. हर एक चीज़ से हम एनर्जी बनाते हैं. अब रिवर वाटर, ये क्या है? एक रीन्यूएबल रिसोर्स है. एज लॉन्ग एज ग्लेशियर एंड फॉरेस्ट एग्जिस्ट, अगर ये एग्जिस्ट करेंगे तो पानी हमें मिलता रहेगा. वी कैन टेक टिम्बर फ्रॉम द फॉरेस्ट इन लिमिटेड क्वांटिटी, ये हम लिमिटेड क्वांटिटी में ले सकते हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम इफ़ वी अलाउ इट टू रीजनरेट, अगर हम उसको मतलब है रीजनरेट कर पाएँ, यानी कि जितना आप ले रहे हैं उतना ही आप उगा दें, उनको लगा दें, तो आपको वो चीज़ें मिलती रहेंगी लेकिन लिमिटेड. नाउ रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज, अ सेकेंड वे ऑफ कैटेगराइजिंग नेचुरल रिसोर्सेज. अब दूसरा वे क्या है? दूसरी तरीके से आप नेचुरल रिसोर्सेज को कैटेगराइज करते हैं, रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल. कुड बी बेस्ड ऑन वेदर दे आर रीन्यूएबल और नॉट. अ जनरल प्रिंसिपल ऑफ नेचर इज दैट इट फंक्शन इज अ रीस्टोरेटिव एंड रीजनरेटिव वे. ठीक है, कि नेचर का क्या है? एक फंक्शन है, वो खुद की चीज़ों को रिस्टोर करता है और फिर से उनको रीजनरेट करता है. रिस्टोरेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ रिटर्निंग समथिंग टू इट्स ओरिजिनल हेल्दी स्टेट इफ़ इट हैज़ बीन डिग्रेडेड और डैमेज्ड. ठीक है, रिस्टोरेशन में क्या होता है? प्रोसेस होता है जब कोई चीज़ ख़राब हो गई है, उसको थोड़ी देर के लिए वो डैमेज हो गई है, तो उसको फिर से उसके ओरिजिनल हेल्दी स्टेट में लेकर आना, ये हो गया रिस्टोरेशन. नेचर हील्स, नेचर हील करता है, रीन्यू करता है और मेंटेन करता है खुद को टाइम के साथ, लेकिन टाइम लगता है. ठीक है, ये नहीं कि आज ख़राब हो गया आज के आज ही ठीक हो जाएगा, नहीं, वो कुछ सालों का टाइम लगता है और वापस अपनी उसी पोजीशन में आ जाता है. अ कट ऑन योर स्किन विल नॉर्मली हील, जैसे आपकी अगर स्किन पे छोटा मोटा कट लग जाए तो कुछ टाइम के बाद, दिनों के बाद वो ठीक हो जाता है अपने आप. अ फॉरेस्ट रिकवर आफ्टर अ वाइल्ड फायर, एक फॉरेस्ट में अगर आग लग जाती है तो वो भी रिकवर हो जाता है वहाँ से. रीजनरेशन गोज बियॉन्ड रिस्टोरेशन, अब रीजनरेशन इससे अलग है रिस्टोरेशन से. इट इज़ अबाउट नेचर्स एबिलिटी टू क्रिएट न्यू लाइफ एंड द कंडीशन फॉर थ्रिविंग. तो नेचर की एबिलिटी है कि नई लाइफ को भी वो क्या करते हैं? क्रिएट करते हैं. We plant trees in area that may have lost them on account of human intervention like clearing forest for housing. तो हमें क्या करना है? प्लांट करने हैं किनके? ट्रीज़ का कौन से एरिया में जो ह्यूमन ने अपनी एक्टिविटीज़ के लिए, अपनी चीज़ों के लिए, जैसे घर बनाने के लिए फॉरेस्ट को कट किया, तो जहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से ट्रीज़ कट हुई या ऐसी चीज़ें हैं जिससे नेचर को हार्म हुआ है, तो उनको फिर से रिस्टोर करना है. प्लांटिंग द टाइप ऑफ ट्रीज दैट वर ओरिजिनली ग्रोइंग देयर रिस्टोर द इकोसिस्टम. और अगर हम वहाँ पर उसी टाइप के ट्रीज़ लगाएंगे जहाँ जैसा वहाँ का कंडीशन है या जिस तरह के पेड़ काटे गए थे, तो ये रिस्टोर करेगा वहाँ के इकोसिस्टम को. द ट्री प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर फॉर द बर्ड्स, स्क्विरल्स एंड अदर क्रिएचर्स एनेबलिंग लाइफ टू रिटर्न. नेचर वर्क्स इन साइकिल वेयर देर इज़ नो वेस्ट. नेचर जो है एक साइकिल की तरह काम करता है जिसमें कुछ वेस्ट नहीं होता. जैसे कि एक फॉरेस्ट लो, लेट्स से अ ट्री फॉल इन द फॉरेस्ट, एक ट्री जो है गिर गया है, इट डिकम्पोज, वो डिकम्पोज हो जाएगा बैक्टीरिया से, फंगई से और इंसेक्ट से. ठीक है, और उनको फीड करेगा. द ट्री बिकम पार्ट ऑफ द सोयल एनरिचिंग इट, और उसके बाद मिट्टी का पार्ट बनेगा, उसको एनरिच करेगा. न्यू ट्री एंड प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स, और उसके जो सीड्स हैं उससे नए ट्रीज और प्लांट्स बनेंगे. इवेंचुअली सम विल फॉल एंड द साइकिल स्टार्ट्स अगेन. तो क्या हुआ? कुछ गिरेगा तो उससे फिर कुछ ना कुछ नया होगा. These are the example of nature's principle of restoration and regeneration in practice. तो ये नेचर के प्रिंसिपल हैं कि रिस्टोर और रीजनरेशन चलता रहता है. Now the renewable resources. Renewable resources exhibit
these categories over time categorized कैरेक्टरिस्टिक्स ओवर टाइम। तो रीन्यूएबल रिसोर्सेज में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं टाइम के साथ जो हैं। मोस्ट ऑफ इंडिया हैज़ अबंडेंट सनशाइन इन द नेचुरल कोर्स, रिवर्स आर फेड रेगुलरली बाय रेन। अब नेचर रेन से क्या होता है, हमेशा रिवर को पानी मिलता रहता है, पौंड वगैरह में पानी आता रहता है। और जो मेल्टिंग ग्लेशियर है उनसे फॉरेस्ट रिन्यू करते हैं खुद को, सोइल रिप्लेनिश करती है इटसेल्फ थ्रू नेचुरल प्रोसेसेस एंड सो ऑन, चलता रहता है। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, एनर्जी फ्रॉम फ्लोइंग वाटर, timber from forest are renewable resources as long as we are able to manage them in a sustainable manner। तो अगर इन सारी चीज़ों को हम ढंग से यूज़ करें, मैनेज करें, तो ये सब क्या है, रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं जो हमें नेचर से मिलते रहेंगे, मतलब ख़त्म नहीं होंगे, लेकिन इनको जो है हमें ढंग से यूज़ करना होगा। जैसे ट्रीज़ को अगर आप काट रहे हैं लेकिन लगा नहीं रहे तो वो क्या होंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो जितने आप काट रहे हैं उतने ही अगर आप लगा दे तो वो ख़त्म नहीं होंगे, आपको मिलते रहेंगे। However, for them to remain renewable there is a condition। अब उनको रिन्यूएबल रखने के लिए कंडीशन है, द नेचुरल रिदम ऑफ रिस्टोरेशन एंड रीजनरेशन मस्ट नॉट बी डिस्टर्ब। जो अभी हमने रीजनरेशन या रिस्टोरेशन देखा, नेचुरल रिदम, वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, तो ये हमें मिलते रहेंगे। इफ़ वी हार्वेस्ट टिम्बर फास्टर देन द फॉरेस्ट कैन ग्रो ट्रीज। अगर हम टिम्बर्स को काट दें, यानी कि पेड़ को जल्दी काट दें, जितने, अब देखो एक पेड़ को जो है बनने में कम से कम बड़ा होने में 9 से 10 साल लगेंगे, लेकिन अगर आप एक ही साल में सारे पेड़ काट देंगे तो आपको दोबारा पेड़ नहीं मिलेंगे, आपको 9-10 साल वेट करना पड़ेगा। तो अगर आप जिस स्पीड से वो ग्रो करते हैं उसी स्पीड से जो है अगर आप काटेंगे तो आपको चीज़ें मिलती रहेंगी। वी विल इवेंचुअली डेपेल द फॉरेस्ट, तो हम उसको एकदम से ख़त्म कर देंगे। साइंटिस्ट हैव शोन दैट थ्रू इररिस्पॉन्सिबल ह्यूमन एक्शंस मैनी ऑफ नेचर साइकिल हैव बीन डिस्टर्ब्ड। अब साइंटिस्ट ने ये भी डिस्कवर किया है कि ये जो ह्यूमन्स के एक्शंस है वो बहुत जो है इररिस्पॉन्सिबल है, जिसकी वजह से नेचर्स का जो साइकिल है वो डिस्टर्ब हो गया है। अ कम्बिनेशन ऑफ सेवरल फैक्टर इंटरेक्टिंग, अब कुछ सेवरल फैक्टर हैं उनका कम्बिनेशन की वजह से। फॉसिल फ्यूल ड्राइवन इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड द कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट फॉर एग्रीकल्चर एंड द अदर पर्पज आर टू ऑफ दैम। जैसे कि अब फॉसिल जो भी इंडस्ट्री वगैरह है उनमें फ्यूल चाहिएगा, तो उसके लिए क्या किया जाता है, ज़्यादा फ्यूल निकाला जाता है। अब फैक्ट्री बनेगी और साथ में एग्रीकल्चर के लिए कई बार फॉरेस्ट को काटा जाता है या फैक्ट्रीज़ के लिए फॉरेस्ट को काटा जाता है। तो ये दो जो हैं मेन इसके आप बोल सकते हैं, हैड लेड टू राइजिंग टेम्परेचर डेट वी आर एक्सपीरियंसिंग। इनकी वजह से जब आप फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं, फोसिल फ्यूल ज़्यादा निकाल रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, अभी आपने खुद ने भी नोटिस किया होगा कि जो टेम्परेचर है वो पहले की बजाय बढ़ गया, यानी कि गर्मियाँ ज़्यादा होने लगी और साथ में ठंड भी ज़्यादा होगी पहले के मुकाबले। On account of this, the glacier in some places in the Himalayas are melting at a rate faster than precipitation can replace them। अब इसकी वजह से क्या हो गया, गर्मी ज़्यादा हो गई तो ग्लेशियर जो है हिमालय पे वो जल्दी जो है मेल्ट कर रहे हैं, पिघल रहे हैं, precipitation की रेट उतनी नहीं है। This has implication on water security for the population living in the plains dependent on the water टावर। सो वाटर सिक्योरिटी मतलब अगर ज़्यादा निकलेगा तो बाढ़ वगैरह का खतरा ज़्यादा हो जाता है, मेल्ट ज़्यादा होगा तो वाटर टावर जो है उन्हीं पे जो उनकी जो लोग प्लेन में रहते हैं उसके आसपास के एरिया में, तो उनकी लाइफ जो है उसी पे डिपेंड हो गई है। अब ये देखो अर्घ दे रहे हैं सूर्य को, द सन गॉड इन ग्रेटिट्यूड। तो अर्घ क्या होता है, ऑफरिंग होता है, मोस्टली पानी दिया जाता है कि रिस्पेक्ट शो कर रहे हैं सन को, ग्रेटिट्यूड शो कर रहे हैं। नाउ ट्रेडिशनली कम्युनिटीज़ हैड अ सिस्टम ऑफ रेगुलेटिंग, तो कम्युनिटीज़ के पास एक सिस्टम है रेगुलेट करने का, फिशिंग ड्यूरिंग द स्वोपिंग सीजन टू अनेबल द मेंटेनेंस ऑफ द फिश पॉपुलेशन। ठीक है, इस सीज़न में वो उसको फिश पॉपुलेशन के लिए अलग अलग उन्होंने सिस्टम बना रखे हैं। हाउएवर द कमर्शलाइजेशन ऑफ फिशिंग रिजल्टिंग इन ओवर फिशिंग, लेकिन अब लोग जो हैं ज़्यादा वो खाते हैं या ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, कमर्शियल ज़्यादा हो गया है, एड वगैरह ज़्यादा आती है, तो उसके लिए लोग क्या करते हैं, ओवर फिशिंग करते हैं। इन द केस ऑफ अ टाइप ऑफ फिश कॉल्ड टूना, कोई फिश जिसे टूना बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल द रैपिड एंड एक्सटेंसिव डिक्लाइन इन देयर पॉपुलेशन लेड टू सम एग्रीमेंट ऑन कंट्रोल ऑफ फिशिंग। Nevertheless, this important type of fish that keeps the ocean ecosystem in balance by consuming smaller fish, shrimps, etc. is on decline। तो अब जो है इनका जो है इतना ज़्यादा जो है मीन्स इनका फिशिंग होने लगा, इनको पकड़ने लगे हैं कि
इनकी वजह से जो ओशन का इकोसिस्टम था, क्योंकि ये जो छोटी फिशेज़ हैं या श्रिम्प्स वगैरह थे उनको खा लेते थे, इकोसिस्टम बना के रखते थे, लेकिन आजकल ये फ़िश ज़्यादा इनको पकड़ा जा रहा है, तो जिसकी वजह से ये इकोसिस्टम भी इनका बैलेंस ख़राब होता जा रहा है. Do you know of other traditional practices that help the ecosystem to stay in balance? तो क्या और भी ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है जिससे इकोसिस्टम को बैलेंस में रखा जाता है? So yes, many traditional practices show respect for nature as sacred. Sacred groves in India are protected forest area where cutting trees or harming wildlife is prohibited, यानी कि मना है, as they are believed to be homes of gods and spirit. The Ganga river is worshipped and regarded as holy. Certain trees like peepal and banyan are considered sacred and are not cut down. Indigenous groups such as Native American, Aboriginal, Australian share similar belief and perform rituals to honor nature. These practices reflect a deep respect for the environment and natural resources. वी नीड इंडस्ट्रीज़ टू प्रोड्यूस द गुड वी कंज्यूम. अब इंडस्ट्रीज़ तो हमें चाहिए ताकि वो चीज़ें बना सके जो हमें चाहिए, जो हम कंज्यूम करते हैं. द प्रोसेस ऑल्सो क्रिएट वेस्ट डेट आर फ्रीक्वेंटली डिस्चार्ज इन टू रिवर्स एंड अदर वाटर बॉडीज़. लेकिन जो चीज़ें उनसे बनती हैं उसके बाद जो उनका वेस्ट होता है, जो गंदा पानी या जो भी चीज़ें होती हैं, वो कहाँ पर छोड़ा जाता है? वो मोस्टली डिस्चार्ज किया जाता है रिवर या ओशन वगैरह में, या जो बाकी पानी की जगह हैं वहाँ पर. ऑफन दीज वेट्स कैन नॉट डिके टू बिकेम द फूड ऑफ सब लाइफ फॉर्म. अब ये क्या करता है, बाकी जो पानी के अंदर जो रहते हैं, जो भी लाइफ फॉर्म्स हैं पानी के अंदर रहती हैं, वो उनके लिए खाने का काम तो नहीं कर सकता. इंस्टेड इट्स लीड्स टू अ डिस्टर्बेंस इन नेचर साइकिल ऑफ रिस्टोरेशन एंड रीजनरेशन. बल्कि इससे क्या होता है, जो नेचर साइकिल है उसका डिस्टर्ब हो जाता है. वो रिस्टोर और रीजनरेशन, वो पूरा जो है नेचर की इस साइकिल को डिस्टर्ब कर देते हैं. लीडिंग टू अ सिचुएशन वेयर द रिवर बिकम्स पॉइजनस. तो वो क्या एक सिचुएशन बन जाती है जिसमें रिवर जो है डेंजरस हो जाती है, पॉइजनस हो जाती है एंड लाइफ को सपोर्ट नहीं कर सकते, यानी कि जो एक्वेटिक एनिमल है उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है. नेक्स्ट, आइडेंटिफाई ह्यूमन एक्शंस इन योर सराउंडिंग दैट रिजल्ट इन नेचर लूजिंग हर एबिलिटी टू रिस्टोर एंड रीजनरेट. तो कैसी ऐसी, मतलब आपके आसपास के एरिया में आपको ऐसी ह्यूमन एक्टिविटीज़ या एक्शंस देखने हैं जिससे कि नेचर की जो एबिलिटी है रिस्टोर करने की, रीजनरेट करने की, उसका लूज हो रहा है या वो ख़त्म हो रही है. वट टाइप ऑफ इंटरवेंशन कैन बी अंडरटेकन टू रिस्टोर नेचुरल साइकिल. सो ह्यूमन एक्शंस that harm natural ability to restore and regenerate include deforestation, cutting down trees faster than they can regrow, water pollution, contaminating rivers and with industrial and household waste, over extraction of groundwater, taking more water than can be naturally replenished, excessive use of chemical का ज़्यादा use करना, using too many fertilizer and pesticide that degrade soil health. These activities disrupt natural process, causing problem like soil degradation, water contamination and loss of biodiversity etc. Restore कैसे कर सकते हैं? Plant native tree. This help rebuild forest and support local wildlife. Practice sustainable water management. Techniques like rainwater harvesting can conserve water. Reduce pollution. Properly treat waste from disposal before disposal to protect ecosystem. Use organic farming methods. These avoid harmful chemical and promote soil health. Implementing these measures support the natural restoration and regeneration of ecosystem, allowing them to recover over. Now don't miss out ecosystem functions and ecosystem services. Nature has some inherent ways of working. तो अलग तरह हैं इसके. For example, trees naturally produce oxygen, naturally produce करते हैं. When this natural process benefits human, अब ये natural process क्या करते हैं, human के लिए beneficial हैं, we call them ecosystem services. तो उन्हें हम बोलते हैं ecosystem services. We can think of it like this. हम इसे ऐसे सोच सकते हैं, a forest naturally filter water. जैसे कि एक forest जो है पानी को filter करता है, प्रिवेंट करता है सोयल इरोजन को, और प्रोवाइड करता है हैबिटेट किसको, बहुत सारे एनिमल्स को. दीज आर इकोसिस्टम फंक्शंस. तो यही इकोसिस्टम का काम है. व्हेन वी बेनिफिट फ्रॉम क्लीन वाटर, जब हमें क्लीन वाटर से बेनिफिट मिलता है, प्रोटेक्टेड फार्मलैंड होता है एंड पोलिनेटेड क्रॉप्स होती हैं बिकॉज ऑफ डेट फॉरेस्ट, वी आर रिसीविंग इकोसिस्टम सर्विसेज फ्रॉम नेचर. हमें जो है इकोसिस्टम से, नेचर से जो है ये इकोसिस्टम सर्विसेज मिलती हैं.
Manure tree produce about 200 and a mature tree produce 275 liter of oxygen per day. पर डे वो जो है इतना ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं. दिस वेरीज अ लिटल डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ ट्री. तो अलग अलग हो सकता है किसी ट्री पे, जो उसका टाइप है उसके अकॉर्डिंग. अ ह्यूमन बीइंग नीड्स अबाउट 350 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एवरी डे. अब एक ट्री इतना बनाता है और एक ह्यूमन को हर रोज़ इतनी चाहिए. दिस कैन चेंज बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ एक्टिविटी. अब ये डिपेंड करता है आपकी एक्टिविटीज़ कैसी हैं. जैसे ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी है तो ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी. ठीक है. डेट एन इंडिविजुअल इंगेज इन देयर हाइट एंड वेट एंड सोन. तो इसके अकॉर्डिंग हर इंसान का जो कैपेसिटी है, नीड है जो ऑक्सीजन की, वो चेंज होती है, अलग अलग होती है. टेक अप अ स्मॉल रिसर्च स्टडी टू एक्सेस द टाइप ऑफ रीन्यूएबल रिसोर्सेज इन योर रीजन. You may discuss with your teacher the geographical area of your study and sources to access information that you may need. What have been the change in their status over time? Make a small report that identify the reason for the change and what may be done. So suggestive answers हैं, बाकी आपके अकॉर्डिंग आपका जो एरिया है उसके अकॉर्डिंग आपके आंसर अलग हो सकते हैं. In my region, Delhi, the primary renewable resources are solar energy, wind energy and biomass. Solar energy has grown with government incentives, but adoption is limited by high cost and space constraint. Wind energy is underdeveloped due to the city flat terrains, and biomass remains untapped due to inefficient waste management. Delhi is working to increase its renewable energy capacity through initiatives like rooftop solar panel and projects such as 1000 megawatt solar plant and a 111 megawatt wind power plants. The status of these resources has changed due to urbanization and rising energy demand. With solar energy is growing, pollution and overcrowding reduce its efficiency. क्योंकि वो ज़्यादा बढ़ जाता है. Wind energy has not progressed and biomass potential remain unused. To improve, Delhi needs stronger policies for solar adoption and better ways to energy system and urban planning focused on renewable energy. तो ये दिल्ली का है, आपको ये और एरिया का, मतलब जो आपका एरिया उसका देख सकते हैं. Now, non-renewable resources. Non-renewable resources are created over long period, जिनको बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है. They cannot be replenished at the rate we can use them. तो उनको उस स्पीड से नहीं बनाया जा सकता जिस स्पीड से हम उन्हें यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल फॉसिल फ्यूल्स जैसे कि कोल और पेट्रोलियम है, एंड मिनरल्स एंड मेटल लाइक आयरन, कॉपर एंड गोल्ड आर नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज. ये नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज है. इंडिया हैज़ सिग्निफिकेंट क्वान्टिटीज़ ऑफ कोल्स रिजर्व्स. तो इंडिया के पास जो है कोल रिजर्व्स हैं बहुत ज़्यादा, मतलब क्वान्टिटीज़ हैं उनके पास. वी माइन कोल टू मीट अवर ग्रोइंग नीड्स फॉर एनर्जी. हम क्या करते हैं, माइनिंग करते हैं, कोल को निकालते हैं वहाँ से, ताकि जो हमारी नीड बढ़ रही है, ज़रूरत बढ़ रही है एनर्जी के लिए, वो हमें मिल सके. बट इट हैज़ बीन एस्टिमेटेड दैट द कोल रिजर्व इन इंडिया मे लास्ट अनदर 50 ईयर्स. लेकिन जिस स्पीड से हम ये निकाल रहे हैं तो हो सकता है जितना भी हमारे पास जो माइनिंग में कोल है वो 50 साल तक ही चलेगा. नेक्स्ट, द डिमांड फॉर इलेक्ट्रिसिटी हैज़ बिन इंक्रीजिंग एज द पॉपुलेशन एक्सपेंड. अब जो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है वो बढ़ती रहेगी क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, एंड डेवलपमेंट वर्क जो है एक्सक्लेरेट हो रहा है, बढ़ रहा है. टिल मोर सस्टेनेबल ऑप्शन बिकम अवेलेबल वाइडली. यहाँ तक कि कुछ और दूसरे ऑप्शंस भी हैं जिनका हम यूज़ कर सकते हैं. वी नीड टू यूज़ द कोल वी हैव जुडिशियसली. तो जो कोल अभी हमारे पास है, जो कोयला अभी हमारे पास है, उसको हमें थोड़ा अच्छे से यूज़ करना चाहिए. जो अल्टरनेटिव्स हैं वो हमें देखने चाहिए. वट आर द नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज that you use daily directly or indirectly? What are the possible renewable substitute? What are the some of the steps can take for transition to renewable? So renewable resources that we use daily are either directly or indirectly, जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और मेटल लाइक आयरन और कॉपर. सो नॉन रिन्यूएबल में कोल, पेट्रोलियम यूजेस क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में, हीटिंग में, इंडस्ट्री प्रोसेसेस. पॉसिबल रिन्यूएबल सब्सटीट्यूट क्या, सोलर एनर्जी, विंड या हाइड्रो पावर. स्टेप्स क्या कर सकते हैं, इंक्रीज क्लीन एनर्जी यूज, इम्प्रूव एनर्जी एफिशिएंसी. पेट्रोलियम, ट्रांसपोर्टेशन, हीटिंग, मैन्युफैक्चरिंग, प्लास्टिक. बायोफ्यूल जो है इसके रिन्यूएबल में आ सकते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल, सस्टेनेबली मैनेज टिम्बर प्रोडक्ट. प्रमोट ईवी एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट, डेवलप बेटर एनर्जी स्टोरेज. हीटिंग, कुकिंग,
इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, बायोगैस, सोलर थर्मल और हाइड्रो पावर, इंक्रीज यूज ऑफ रिन्यूएबल गैसेज, इम्प्रूव एफिशिएंसी। मेटल मैन्युफैक्चरिंग, व्हीकल, बिल्डिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, तो रिसाइकल्ड मेटल ले सकते हैं, सस्टेनेबली मैनेज्ड टिम्बर ले सकते हैं कंस्ट्रक्शन के लिए। प्रमोट करना है रिसाइकलिंग को, प्रमोट करना है नेचुरल इकोसिस्टम को। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड इस इम्प्लीकेशंस। सो डिस्ट्रीब्यूशन है नेचुरल रिसोर्सेज का, और इम्प्लाई कैसे करना है, इम्प्लीकेशन कैसे करना है। सो नेचुरल रिसोर्सेज आर नॉट ओनली इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस अवर प्लैनेट और इवन विद इन कंट्रीज। सो नेचुरल रिसोर्सेज क्या हैं, इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है हमारे प्लैनेट में या कंट्रीज में। दिस अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन शेप्स ह्यूमन सेटलमेंट्स। अब अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसी के अकॉर्डिंग जहाँ जहाँ उन्हें मिला वहाँ पर ह्यूमन सेटलमेंट हो गया। ट्रेड पैटर्न चला, क्योंकि जो चीज़ें हमारे पास नहीं, वो दूसरे के पास है तो आपको उनसे लेना है, और जो चीज़ आपके पास है में भी उनके पास नहीं होगी तो आपको ट्रेड, इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट वो चला। इंटरनेशनल रिलेशंस बने, क्योंकि अगर एक के पास सब चीज़ें हैं तो उसे ज़रूरत ही नहीं होगी दूसरे की। कॉन्फ्लिक्ट भी उसकी वजह से बढ़े हैं। मैनी वॉर्स हैव बिन फोर्ट, बहुत सारी लड़ाइयाँ इसकी वजह से हुई हैं, एंड कंटिन्यू टू फोर्ट, और चल रही हैं। टू गेन कंट्रोल ओवर नेचुरल रिसोर्सेज, ताकि जो नेचुरल रिसोर्सेज है उन पे कंट्रोल ले सके। अब ये जहाँ पे देखो ये दिया हुआ है, जहाँ पे ब्लैक कलर है वहाँ पे कोयला है इंडिया में, ट्रायंगल वाले में ऑयल है, जैसे इन जगहों पर हो गया, ठीक है, और यहाँ हो गया। उसके बाद आयरन और मिले हैं पिंक वाले में, और बॉक्साइट मिला है जो ये ऑरेंज कलर में दिए हैं। तो ये सारी चीज़ें इंडिया में मिल रही हैं। ऑब्जर्व द मैप 1.11 जो अभी हमने देखा। नोटिस द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इम्पोर्टेंट मिनरल्स, व्हाट टाइप ऑफ रिसोर्सेज आर अवेलेबल इन योर रीजन। तो आपके रीजन में कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। ओके, सो सजेस्टिव आंसर है, जो आपका रीजन है आपको उसके अकॉर्डिंग आंसर। द मैप इलुस्ट्रेट दैट मिनरल्स आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट अक्रॉस इंडिया। की रिसोर्सेज इंक्लूड, अब कौन कौन से हैं। कोल, प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन ईस्टर्न एंड सेंट्रल रीजन, जैसे कि झारिया, रानीगंज, कोरबा, एज वेल एज साउथ एट नेवेली एंड सिंगारेनी, तो इन जगह पे मिलता है। आयरन और अबंडेंट इन सेंट्रल, ईस्टर्न एंड साउदर्न पार्ट्स इंक्लूडिंग बालियाडिला एंड मयूरभंज। बॉक्साइट मेनली लोकेटेड इन सेंट्रल एंड ईस्टर्न इंडिया, पर्टिकुलरली इन काटनी एंड कोरापुट इन सर्दर्न ओडिशा। Petroleum natural gas found along the western coast near Mumbai High, Ankleshwar and in the northeast at Digboi. This uneven distribution reflect India's diverse geology, with certain region rich in specific minerals. In my region Jharkhand, तो ये झारखंड के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर। Several important minerals are coal. The state is particularly rich in coal with major coal fields in Jharia, Bokaro and Dhanbad. Iron ore mainly found in Singhbhum district. Other minerals, Jharkhand also has deposit of bauxite, copper, mica and uranium spread across various parts of the state. Now, industries located near natural resources create employment opportunities for the local people. अब जो इंडस्ट्रीज नेचुरल रिसोर्सेज के पास है, जैसे यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर जो इंडस्ट्रीज है वो क्या करती है, यहाँ के लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है, अपॉर्चुनिटीज़ देती हैं। टाउनशिप ग्रो अराउंड देम, उनके आसपास जो है बहुत ज़्यादा टाउन वगैरह एक्सपेंड होते हैं, एंड एक्सपेंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ फॉर अदर्स, और दूसरों के लिए भी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती हैं। मोर मॉडर्न फैसिलिटीज़ डेट इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ बिकम एक्सेसिबल, और ज़्यादा फैसिलिटीज़ वहाँ पर जाएंगी क्योंकि लोगों को काम चाहिए, काम के लिए लोग जाएंगे, और बाकी चीज़ें भी वहाँ पर धीरे धीरे बढ़ती रहती हैं। हाउएवर दीज बेनिफिट आर ऑफन अ कंप्लेंट बाय कॉस्ट, लेकिन ये बेनिफिट जो आपको मिलती है इसके लिए कॉस्ट होती है। इन द शॉर्ट टर्म एज वेल एज इन लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म के लिए भी और लॉन्ग टर्म के लिए भी वो कॉस्ट क्या होती है। We have example from across the world of people living in resource-rich areas who have been displaced from their homes to facilitate such development. अब क्या होता है कि इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं पूरी दुनिया के ऑल अराउंड। अगर आप देखेंगे कि जो रिसोर्स रिच एरियाज़ होते हैं उसमें लोगों को उनके घर से निकालकर दूसरी जगह भेज दिया जाता है ताकि वहाँ पे डेवलपमेंट हो सके। इन सम केसेस देयर सैक्रेड प्लेसेस आर अंडर थ्रेट। अब क्या होता है, कई बार कुछ केसेस में ऐसे होते हैं जिनकी जैसे नेचर को कुछ लोग जो है पवित्र मानते हैं, वो भगवान की तरह उसकी पूजा करते हैं,
तो उन सेक्रेड प्लेसेस भी वो क्या हैं, अभी डर में है, खतरे में है, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं. नेशनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड्स डिपेंड ऑन द जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. तो जो नेशनल और इंटरनेशनल ट्रेड होते हैं वो भी डिपेंड करते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज आपकी लोकेशन पे कितना है. Combined with human knowledge and skills, these can create unique product with the wood still. तो इनसे जो है अलग अलग जो है वो चीज़ें बना सकते हैं, यूनिक प्रोडक्ट बना सकते हैं. एज वी नो ट्रेड फ्यूल्ड द डेवलपमेंट ऑफ लार्ज एम्पायर्स इन इंडिया. और ट्रेड जो है बहुत मतलब अगर ट्रेड से क्या होता है, ट्रेड से डेवलपमेंट बढ़ता है. ठीक है, चीज़ें आएंगी, जो चीज़ें आपके पास नहीं है वो आएंगी, और साथ में जो है अगर ट्रेड हो रहा है, आपके इधर से कुछ जा रहा है तो कुछ पैसे उससे मिलेंगे, तो डेवलपमेंट हो जाता है. लार्ज एम्पायर जो है उसमें बन गया है इंडिया का. Now select any two natural resources, gather information about their availability across different parts of India, mark them on the map. What do you observe about their distribution and what are the type of economic activity connected with them? So जैसे यहाँ पर क्या लिया, कोल और आयरन ओर लिया है, तो यहाँ पर ये मेजर कर दिया. So coal and iron ore are two different natural resources found in different parts of India. They are located in जैसे कोल झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल. आयरन और उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और गोवा में. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दीज रिसोर्सेज इज अनइवन विद सिग्निफिकेंट डिपॉजिट concentrated in the eastern and southern region of India. These has result in growth of mining industries in these area. तो माइनिंग ज़्यादा होती है. क्रिएशन ऑफ जॉब होता है माइनिंग और प्रोसेसिंग से रिलेटेड. कोल इज यूज्ड मेनली फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड इन इंडस्ट्रीज. With iron ore, while iron ore is used to make steel, supporting construction and manufacturing activities. Discuss the implication of extracting the natural resources in those parts for current and future generation. Suggest way in which we can use natural gifts in responsible ways. So the extraction of natural resources bring economic benefits but often leads to the displacement of communities, loss of cultural heritage and environment damage. Over time, it depletes resources, harm ecosystem and creates sustainability challenges for future generation. To use nature's gifts responsibly, it is essential to adopt sustainable extraction method. तो सस्टेनेबल एक्सट्रैक्शन मेथड यहाँ यूज़ होना चाहिए. प्रायोरिटाइज करना चाहिए रिन्यूएबल एनर्जी को, इम्प्लीमेंट करना चाहिए इफेक्टिव रिसोर्स मैनेजमेंट को. सपोर्टिंग पॉलिसीज डेट प्रमोट कंजर्वेशन एंड रिस्पेक्ट लोकल कम्युनिटीज राइट इज क्रूशियल. इंक्रीजिंग अ सर्कुलर इकोनॉमी वेयर रिसोर्सेज आर रीयूज्ड एंड recycled help reduce waste and ensure long-term sustainability. Educating future generation on the importance of preserving natural resources is the key of safeguarding the nature for the future. Nature does not pay attention to political boundary. अब नेचर की कोई पॉलिटिकल बाउंड्री नहीं होती, उसे जहाँ करना है जैसे रहना वो वैसे ही होगा. दिस लीड्स टू टेंशन रिगार्डिंग द शेयरिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस स्टेट एज वेल एज कंट्रीज. अब इसकी वजह से क्या होता है, जो थोड़ी बहुत जो है प्रॉब्लम चलती रहती है स्टेट्स के अंदर भी. जैसे अलग अलग स्टेट्स हैं, वो बोलेंगे कि ये मेरा एरिया है, दूसरा बोलेगा मेरा. तो स्टेट्स के अंदर भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं और कंट्रीज़ के अंदर भी. वन एग्जांपल इज़ द शेयरिंग ऑफ कावेरी रिवर. जैसे कावेरी रिवर है वो क्या है, वाटर अमंग, इसका जो पानी है वो शेयर होता है कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला एंड पुडुचेरी. नेगोशिएशन एंड डेफ्ट मैनेजमेंट वर रिक्वायर्ड टू मेंटेन पीस एंड फेयर शेयरिंग. अब जो है इसके लिए जो है पूरा एक मैनेजमेंट बनाया गया है ताकि सब लोगों में पीस बना रहे और फेयर शेयरिंग हो, यानी कि एक लोग ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं दूसरों को कम जा रहा है. Of course, reaching such agreements between neighboring countries is not easy. अब ये तो एक ही जगह की स्टेट है, एक ही कंट्री की, तो यहाँ पर ईजिली वो आप कर सकते हैं. लेकिन अगर किसी कंट्री के साथ इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट हो तो इतना ईजी नहीं होता है एग्रीमेंट करना. फाइंड आउट अबाउट सच अ कॉन्फ्लिक्ट इन द इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट. तो इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में ऐसा कोई जो है कॉन्फ्लिक्ट हो जगह को लेकर या ऐसे भी, जैसे कि एक एग्जांपल है ऑफ एन इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट ओवर नेचुरल रिसोर्सेज इज द ऑन गोइंग डिस्प्यूट बिटवीन इथोपिया, इजिप्ट, सूडान रिगार्डिंग द नील रिवर. इथोपिया हैज़ बीन बिल्ड द ग्रैंड इथोपियन Rensen Dam GERD to produce electricity. Egypt and Sudan are concerned that this dam will limit their access to vital water supply. Egypt relies on the Nile for nearly 90% of its water. Despite multiple negotiations, a lasting agreement has not yet to be
सॉरी हैज़ येट टू बी अचीव्ड, यानी कि अभी तक भी कोई एग्रीमेंट नहीं बना है. सो दिस सिचुएशन illustrate how shared natural resources like river can lead to significant tension between nations. ये मेटोर डैम है तमिलनाडु में, बिल्ट ऑन द कावेरी रिवर. द नेचुरल रिसोर्सेज कर्स, अब इसकी कर्स क्या है, प्रॉब्लम क्या हो सकती है, मतलब श्राप की तरह जो बोलते हैं. हैविंग अबंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज डज नॉट गारंटी इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी. सम रीजन रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज कैन एक्सपीरियंस स्लोअर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. अब ये ज़रूरी नहीं है कि अगर ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज हैं तो वहाँ पर जो है इकोनॉमी यानी कि पैसे ज़्यादा होंगे, प्रोस्पेरिटी ज़्यादा होंगे. कुछ ऐसे जो हैं रीज़न है जो नेचुरल रिसोर्सेज में बहुत रिच हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पर जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, वो थोड़ा कम है. अ फिनोमेन इकोनॉमिक्स कॉल द नेचुरल रिसोर्सेज कर्स. इसे उन्होंने क्या बोला, नेचुरल रिसोर्सेज कर्स और द पैराडॉक्स ऑफ पेलेंटी. पुट वेरी सिंपल, अब इसको बिल्कुल सिंपली देखते हैं. दिस मीन्स डेट ऑफन हैविंग पेलेंटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, अगर ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज हैं, डज नॉट ऑटोमेटिकली मीन डेट अ कंट्री इज़ रिच. तो इसका डायरेक्टली मीन नहीं हो जाता कि वो कंट्री रिच है, उसके लिए आपको उसके लिए काम करना पड़ता है. Frequently, economics are unable to develop industries that convert the resources into product of higher values. अब natural resources तो हैं, लेकिन उन resources से आप उनसे कोई valuable product बना पा रहे हैं या नहीं, तो वो इकोनॉमी उन्हीं पे डिपेंड करेगी. अगर आप अनेबल हैं, वो चीज़ नहीं डेवलप कर पा रहे, इंडस्ट्रीज़ नहीं बना पा रहे हैं जो डेवलप करेगी इन रिसोर्सेज को, कन्वर्ट करेगी इन रिसोर्सेज को प्रोडक्ट में हायर वैल्यू के, तो नहीं हो पाएगा. द चैप्टर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन द लेटर पार्ट ऑफ दिस बुक विल गिव यू अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस. तो वहाँ पे आप इसके बारे में पढ़ेंगे. India had generally avoided this curse by investing in the development of such industries to meet our growing needs. अब इंडिया ने मोस्टली जो है हमेशा इस तरह की चीज़ों में इन्वेस्ट किया है ताकि डेवलपमेंट, मतलब इंडस्ट्रीज़ में हमेशा इन्वेस्ट किया है ताकि डेवलपमेंट हमेशा चलता रहे. What do you think are the different input required to enable the use of the natural resources available in different geographical areas? So to effectively utilize natural resources in various geographical areas, several essential inputs are required. Skilled workforce, individual with the right knowledge and expertise are crucial for managing and developing resources effectively. Good governance, effective leadership ensure fair use of resources and help prevent corruption. Strategic planning, proper planning is necessary to avoid over-dependence on a single resource. Infrastructure investment, developing roads, electricity and transport system is vital for resource extraction and distribution. Modern technology, advanced methods are needed for safe and effective extraction and processing of resources. Environmental sustainability, caring for the environment and respecting local communities is essential for long-term viability. Market access, countries must have the ability to sell resources and product at fair prices to convert natural wealth into sustainable development. However, the challenge of balancing resource extraction with sustainability remains. अब एक्सट्रैक्ट करना चीज़ों को बैलेंस के साथ रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करना ताकि सस्टेनेबिलिटी बनी रहे. अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग नेचुरल रिसोर्सेज इज़ अ वैल्यूएबल स्टार्टिंग पॉइंट. तो बहुत ज़रूरी एक स्टार्टिंग पॉइंट है, बट ह्यूमन नॉलेज, गुड गवर्नेंस एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिटरमाइन वेदर दे बिकेम लास्टिंग बेनिफिट और टेम्पररी विंडफॉल्स. तो क्या है, वो आगे तक भी काम करेंगे या कुछ टाइम के लिए ही जो है ये सारी चीज़ें चलेंगे, मतलब जो इतना स्ट्रेटेजिक उनका टाइम प्लानिंग की है या सब चीज़ें की हैं, तो क्या वो एक लंबे टाइम तक आपको बेनिफिट देंगी या थोड़े टाइम के लिए ये है कि हाँ थोड़े टाइम के लिए काम हो गया है. सो आज हम करेंगे इतना ही. कल उसके बाद है रिस्पॉन्सिबल एंड वाइज यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. अभी हमें टाइप ऑफ या कैटेगराइज कैसे करना है वो पढ़ा, कल इसके बाद करते हैं ये. और ये अगर इसमें कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं. दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.